منڈی بہاؤدین کے علاقے مانگٹ میں یہ ایک یونیک قسم کا گردوارہ ہے۔ اگر آپ پہلی منزل سے تیسری منزل تک آئیں آپ دیکھیں گے کہ تینوں منزلوں کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جان چکے ہوں گے کہ آج کے میری بلاگ کا موضوع ایک گردوارہ ہے جو منڈی بہاؤدین کے علاقے میں واقع ہے۔ اگر آپ لاہور سے سفر کرتے ہوئے بلدیہ جی ٹی روڈ گجرات پہنچیں اور وہاں سے پھالیا شہر کا سفر کریں اور اس طرح سے اگر موٹر وے سے آپ سالم انٹرچینج سے اتر کر پھالیا شہر کی طرف سفر کریں تو آپ کل تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پھالیا شہر سے منڈی بہاؤدین تو سفر کرتے ہیں تو راستے میں آپ کو ایک قصبہ پڑتا ہے جسے مانگٹ کہا جاتا ہے۔ اسی قصبے کے اندر یہ گردوارہ واقع ہے۔ اس قصبے نے سکھوں کی مذہبی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ کر ایک منفرد مقام حاصل کر رکھا ہے، کیونکہ اس شہر میں ایک ایسا گردوارہ ہے جو تاریخی اہمیت میں انمول تو ہے ہی، لیکن اس کے فن تعمیر اور آرٹ کے نمونے سکھ اور مغل فن تعمیر کا بہترین امتزاج ہیں جو آج بھی آنکھوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ یہ گردوارہ بھائی بنو کے نام سے منسوب ہے جو 30 اپریل 1558 عیسوی میں مانگٹ منڈی بہاؤدین میں بھائی بیشان دیو کے ہاں پیدا ہوئے۔ بھائی بنو نے سکھ مذہب اختیار کیا اور سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو اور ان کے چھٹے گرو ہر گوبند کی خدمت میں رہے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امرتسر میں جب گولڈن ٹیمپل تعمیر ہو رہا تھا تو انہوں نے گرو ارجن دیو اور گرو ہر گوبند کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ جب 1604 عیسوی میں سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کی تالیف مکمل ہوئی تو گرو ارجن دیو نے اس کتاب کو لاہور سے جلد کروانے کے لیے بھائی بنو کا انتخاب کیا۔ بھائی بنو نے گرو ارجن دیو سے کتاب کو براستہ مانگٹ لاہور لے جانے کی اجازت مانگی جو انہوں نے دے دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے گرو ارجن دیو کی اجازت سے مانگٹ میں ہی اصل نسخے کی ایک کاپی بھی تیار کر لی۔ جلد کروانے کے بعد انہوں نے دونوں نسخے گرو ارجن دیو کے سامنے پیش کیے۔ گرو نے اصل کو تو گولڈن ٹیمپل میں رکھنے کا حکم دیا اور کاپی بھائی بنو کو دے دی اور اسے اپنے گھر مانگٹ میں لے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ مانگٹ قصبے کا پرانا نام کھڑا مانگٹ تھا، جس کی مناسبت سے گرو گرنتھ صاحب کی یہ کاپی کھاڑی والی بیڑ یا بنو والی بیڑ کے نام سے مشہور ہو گئی اور اس نے اس گردوارے کو بھی دوام بخشا۔ بھائی بنو اپنی تمام زندگی میں سکھ مذہب کا پرچار کرتے رہے اور جنوری 1645 عیسوی میں انتقال کر گئے، لیکن اپنے پیچھے گردوارہ کی شکل میں ایک تاریخی ورثہ چھوڑا۔ یہ گردوارہ بعد میں رنجیت سنگھ کے دور میں اس موجودہ شکل میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ پرشکوہ گردوارہ مغل اور سکھ تعمیراتی انداز کا ایک عمدہ مجموعہ ہے جو ایک مربع شکل کے پلیٹ فارم پر بنا ہے جس کے مختلف سمتوں میں 4 دروازے ہیں۔ مرکزی دروازہ سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ دروازے پر محراب کا جو انداز اپنایا گیا ہے اسے کسپڈ آرچ کہتے ہیں، جس کی 2 پرتیں اس کی ساخت کی اصل خوبصورتی ہیں۔ اس طرز کی محراب کو شاہ جہانی محراب کہا جاتا ہے، جبکہ فارسی میں اسے دانتے دار محراب بھی کہتے ہیں، جسے ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے متعارف کروایا تھا۔ پہلا گردوارہ تو بھائی بنو نے اپنی زندگی میں تعمیر کروایا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو دوبارہ رنجیت سنگھ کے دور میں 19ویں صدی میں تعمیر کروایا گیا تھا اور یہ اس وقت سے ایک بہت خوبصورت اور اصلی حالت میں موجود ہے۔ آئیے اب آپ کو اس گردوارے کے اندر لے کر چلتے ہیں اور اس کی اصل خوبصورتی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طرح دکھائی دیتا ہے۔ سکھوں کا گردوارہ مانگٹ جو پھالیا تحصیل کے ساتھ منڈی بہاؤدین روڈ پر واقع ہے، یہ گردوارہ ہے۔ اس کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عثمان کیا بتا رہے تھے آپ اس کے بارے میں؟ راجہ رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا یہ۔ جی
इसका नाम को भाई बन्नू गुरुद्वारा है। भाई बन्नू गुरुद्वारा है। जी। तो आजकल देखभाल आपके पास है या इसको कौन देखभाल करता है? ये हमारे पास है अभी फिलहाल। तो ये महकमा औकाफ ने अभी अंडर अपने नहीं लिया है या लिया हुआ? नहीं, वो कोई उनका इससे ऐसा लिंक ही नहीं है, उन्होंने तो ऐसे ही छोड़ दिया तो था। ये ऐसे यानी अब आप जगह आपके पास है या ये गुरुद्वारे का इलाका सर आपके पास? ये जगह और गुरुद्वारा ये है ना लीज पे है, लीज पर आपने लिया हुआ है। क्योंकि वो बहुत बढ़िया तो वहाँ से दरवाज़ा अंदर जा सकते हैं आज? मार्बल तक लेके ये गुरुद्वारे का ऊपर की मंजिल, नीचे की मंजिल, काफ़ी हद तक इस पर जो है फूलों का काश्तकारी का काम भी यहाँ पर है। चौखाटें भी इसकी मार्बल की हैं और ये कुछ गुरमुखी ज़ुबान में यहाँ तहरीर है। आइए आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। 2005 से पहले यहाँ एक प्राइमरी स्कूल होता था जो ज़लज़ले की वजह से अब बंद कर दिया गया। बहुत खूबसूरत इसके नक्श नगार तो नज़र आते हैं। आजकल तो एक डेरे का शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर की दीवारें ब्लाइंड आर्केड से सजी हैं जिनमें पश्ताकों या पैनल्स पर अकीदतमंदों की मुसव्वरी की गई है जिसे म्यूरल कहते हैं, जिनमें रोज़मर्रा के मुख्तलिफ़ पहलुओं की मंजरकशी की गई है। मसलन एक म्यूरल में 2 अकीदतमंद 1-2 चेहरों और 4 हाथों वाली देवी के सामने खड़े हैं जिसके हाथ में कमल का फूल है। दूसरी तरफ अकीदतमंदों की प्रोफाइल को स्ट्रक्ट प्रोफाइल में बनाया गया है। कमल का फूल हिंदुस्तानी आर्ट में एक मशहूर मोटिफ है। इस तरह अगर एक और म्यूरल देखें तो इसमें भी गालिबन एक देवता की मंजरकशी की गई है। वो एक तोते पर सवार है और देवता एक साधु से महवे गुफ्तगू है। और इस आर्ट में भी पर्सोनिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये वॉल म्यूरल अब मध्यम होना शुरू हो गए हैं। इसकी पहली मंजिल पर हम अभी ऊपर जाते हैं तो दीवारों पर तो नक्शा नगार बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। बाहर भी बहुत बड़ी हवेली के अंदर ये गुरुद्वारा कायम है। बहुत खूबसूरत है, देखने से तल्लुक़ रखता है। यहाँ भी नीचे जैसे बरामदा नुमा और यहाँ पर नीचे इसके तकरीबन हर एक बरामदे में 3 दरे बने हुए हैं। 12 दरी की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। ये इनका बैरूनी इलाका आपको नज़र आ रहा है। कुछ तहरीरें यहाँ भी हैं जो मिटी हुई हैं। छतों पर भी खूबसूरत आर्ट वर्क है और शीशा लगाकर इसकी खूबसूरती और बढ़ाई गई है जैसे शीश माल हो। मोटी दीवारें हैं, झरोके हैं, बाहर की बालकोनियाँ बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। ये दूसरी मंजिल भी सेम जैसे पहली मंजिल थी वैसे बनाई गई है। तंग बरामदे हैं और चारों तरफ झरोके हैं जिससे आप बाहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। मांगट कस्बे के दरमियान ऐन दरमियान में ये गुरुद्वारा वाक़या है। इसका ये बैरूनी हिस्सा है। इस मंजिल से छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ तंग हैं जिसमें से बमुश्किल एक शख्स ही गुजर सकता है, जबकि छत पर एक चबूतरा है जिसका गुंबद कुबा से सजाया गया है। गुरुद्वारा का मरकज़ी हाल महराबों, पेशताकों और फूलों के नमूनों का इम्तजाज है। इन ताकों में शबी और फूलों की मुसव्वरी के तेज़ रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके फ़न तमीर के अंदाज और आर्ट में तनासब है जिससे मजहबी जोशो खरोश और अकीदत की अक्कासी होती है। ये शायद गुजरात और मंडी बहाउद्दीन अजला की एक ऐसी इंतहाई आम इमारत है जिसमें फ़न मुसव्वरी अभी भी उम्दा हालत में बाकी है। और दूसरा, इस इमारत की फ़न तमीर और इसमें इस्तेमाल होने वाले नमूनों का तनव्वुर इसे इस ज़माने की इमारतों से मुनफरिद करता है। गुरुद्वारे की छत पर भी खूबसूरत सी 12 दरी शक्ल का महराबों वाला एक छत का ऊपर कैसा बना हुआ है। मोटी दीवारें हैं, पिलर
मुगलिया ही दौर की यादगार ताज़ा करते हैं। रंजीत सिंह के दौर का बना हुआ है और उसके ऊपर भी एक गुरुद्वारे की लुक नज़र आ रही है। करतारपुर के गुरुद्वारे जैसा ही ये शक्ल बनाई गई है। कोनों पर बने हुए छोटे मीनारनुमा हिस्से तो ख़त्म हो चुके हैं, उनके छोटे आसार ही बाकी हैं, और लेकिन छत पर एक बड़ा सा पित्तल का बना हुआ मीनार नज़र आ रहा है। Have come here in some decent daylight. I won't waste further time. Let's go inside and see some good examples of Sikh art. इस गुरुद्वारे की इस मौजूदा हालत के बावजूद पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान के बाहर के इलाकों से भी, ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका से, कनाडा से लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। और अगर इस गुरुद्वारा की मुनासिब देखभाल की जाए तो ये ना सिर्फ बहुत से सिख यात्रियों की तवज्जो का मरकज़ बन सकता है, बल्कि आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले अहले इल्म के लिए भी ये बहुत पुरकशिश हो सकता है। हुकूमत वक्त से पुरज़ोर अपील है कि इस गुरुद्वारे की तरफ ख़ास तवज्जो दे, इसकी तमीर व मरम्मत करे, इसकी खूबसूरती और इस तक पहुँचने का रास्ता बहाल करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सैर के लिए आ सकें। सिखों की बनाई हुई कई इमारतें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ इमारतें अभी तक अपनी असली शक्ल में मौजूद हैं, जिनमें गुरुद्वारा भाई बन्नू बहुत ही तारीख़ी अहमियत का हमल है और सिखों के इंटरनेशनल गुरुद्वारों की फहरिस्त में भी शामिल है। गुरुद्वारा भाई बन्नू एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है, जिसकी दीवारों और फर्श पर संगे मरमर का बहुत ही नफासत से इस्तेमाल किया गया है। गुरुद्वारे के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने साफ़ पानी का एक तालाब यानी सिखों का स्नान घाट हुआ करता था, जो तकरीबन सन 2000 के बाद मुनहदम होता हुआ अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। वहीं स्नान घाट के साथ बोर्ड का एक बहुत पुराना और बड़ा दरख्त हुआ करता था, जो पक्की ईंटों के एक बड़े चबूतरे के ऐन दरमियान में था। इस चबूतरे पर रोज़ाना सुबह के वक्त सब्ज़ी मंडी लगा करती थी, जिसमें मांगट और गिरदुनवा के गाँव से सब्ज़ी और फल वगैरह उगाने वाले लोग अपनी सब्ज़ियाँ और फल बेचने के लिए यहाँ आते थे, और दुकानदार हज़रात इनसे सब्ज़ियाँ और फल ख़रीद कर दिन भर अपनी दुकानों पर बेचते थे। और यूँ ये जगह कारोबारी लिहाज से भी तारीख़ में अपना एक मकाम रखती है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये सिखों की मजहबी इबादत गाह थी, और लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद कई दहाइयों तक इसे लड़कों के प्राइमरी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन इसकी खस्ता हाली के बायस स्कूल को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।